Hi guys, today we are going to see implementation of Dijkstra's algorithm in C++ language. For this implementation, we are going to consider the graph which is on the right side of the screen. It has 6 vertices and 8 edges, and the source vertex given for Dijkstra's algorithm is vertex numbered 1. Okay, the vertices are 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are 6 vertices starting from 0 till 5, and the source vertex is 1. So, as you know, while coding, you have to give the graph input to the code, right? And for that, we need to represent the graph in some format. So, to do that, I have already converted the graph into its adjacency matrix. Adjacency matrix is right below the graph. Here, the columns are marked by variable j, the rows are marked by variable I. The vertices are written on the first row and first column, and all the black the integers in the black ink are the cost of the edge. If there is a zero, there is no edge. If there is a cost, there is an edge with that cost in the graph. Okay, so without wasting any time, let's start coding. On the left hand side, you can see I have written some basic code, which is boilerplate code. Include IO stream, which is I input output stream for C++. Second library I have included it C limits. Why I have included that? Because um, I'm. Do you remember the problem solving part? So in that, at each step, did the relaxation technique, right? And before going to the actual distances, we assumed that every other vertex from the starting vertex is at infinity distance. So to mark that infinity into the code, I have to take a variable called int max. Okay, and to take that, I need to use that in the program, I need to include the C limits library into my code. After that, before starting with my graph class, I will define the number of vertices. Okay, so this statement, the statement define vertices 5, will sorry, we have 6 vertices, right? Not 5. Let me just correct it. 6. Okay. So whenever I will write vertices in my program, it will take it as 6. Okay. Now let's start with class dgraph. Dgraph stands for Dijkstra's graph. This will be my class body. Inside the class, why I have taken class for this? Because I can create different kind of graphs, right? From the same structure. Okay, so what I can do is I can program that structure, and to program a structure I can write a class, right? ग्राफ नाम का क्लास मैंने लिया है, तो हर बार जब मैं मेरा ग्राफ चेंज करूंगी आई विल टेक अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ठीक है, so dgraph is my class name. Now I will take some public variables. First variable will be my graph, so I will name it as graph. उसके dimensions होंगे vertices only, मतलब graph of 6,6, right? So this is my declaration of graph. Now I will get the input for graph values, and how I will input that? By looking in the adjacency matrix, correct? Okay, let me just write the numbers here. First row is 0, comma 4, comma 2, comma 0, comma 0, comma 0. Second row is 4, comma 0, comma 1, comma 3, comma 0, comma 0. Second row is
2, 1, 0, 6, 0 and 0. Third is 0, 3, 6, 0, 3, 5. Fourth is 0, 0, 0, 3, 0, 1 and last one 0, 0, 0, 5, 1, 0. So this is my input of the graph. Okay, I will give a semicolon after this. I will need two more variables. And why will I need those variables? Let me just explain this. So this is my adjacency matrix. For your kind information, if you don't know how to convert and graph into adjacency matrix, you can refer to my previous video about adjacency matrix. Okay, so the variable I'm going to take is int distances or int distance. This will be a 1D array of dimension vertices. ठीक है, और यहाँ पे सेव क्या करूंगी मैं, हर एक वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर स्टेप में. ठीक है, तो डू यू रिमेम्बर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज वेयर एट द इनिशियल स्टेज वी, लेट्स से ये हमारे वर्टाइसेस है, तो हमने फर्स्ट स्टेज में सब इन्फिनिटी दिया था, करेक्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज अनरीचेबल फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप. सो ये सेव करने के लिए दिस मैं ये 1D एरे लूंगी, तो ये है मेरा 1D एरे कॉल्ड डिस्टेंसेस. ठीक है, ये रहा मेरा पहला वेरिएबल. सो लेट मी जस्ट टेक दैट इंट डिस्टेंसेस एंड उसका साइज है वर्टाइसेस. ओके, डन. सेकेंड में लूंगी, लेट्स कॉल इट boolean shortest path relaxed. मतलब ये भी मेरा एक एरे होगा जो वर्टाइसेस लॉन्ग होगा, मतलब 6 साइज का होगा, और ये बुलियन टाइप का है, मतलब ये एक तो ट्रू वैल्यू सेव करेगा या फिर फॉल्स. एट द इनिशियल स्टेज मैंने कोई भी वर्टेक्स रिलैक्स नहीं की है, इसीलिए मैं यहाँ पे सब फॉल्स दूंगी. ठीक है, और जैसे जैसे एक एक वर्टेक्स रिलैक्स होता जाएगा मैं इस फॉल्स को ट्रू करूंगी. तो हम समझ लेंगे कि जो वैल्यू ट्रू है वो इंडेक्स उस नंबर का वर्टेक्स, उस नंबर के इंडेक्स का वर्टेक्स शॉर्टेस्ट पाथ में रिलैक्स हो गया है, मतलब उसका शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया है. तो इसे भी मैं ऐड कर देती हूँ. लेट्स ऐड इन सॉरी बुलियन शॉर्टेस्ट पाथ रिलैक्स्ड, और इसकी साइज है वर्टाइसेस. डन. अब हम डायरेक्टली जाएंगे हमारे मेन फंक्शन की तरफ. तो मैं एक फंक्शन लूंगी जो जिसका नाम होगा डाइक्स्ट्रास. व्हाट दैट फंक्शन विल डू, it will start relaxing every vertex one by one. Okay, so let me first write the function definition. वो फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा जिसका नाम होगा डाइक्स्ट्रा. अब फॉर द algorithm we need a starting point in the graph. वो starting point हम as a parameter देंगे. तो let's say int starting point. Okay, now this starts the body of the function. अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था ये डिस्टेंसेस को और ये शॉर्टेस्ट पाथ रिलैक्स्ड के एरे को, दोनों एरे को हम इनिशियलाइज करेंगे. तो इनिशियलाइज दिस एरेज आई विल टेक अ फॉर लूप. फॉर लूप में इंटीजर आई लूंगी मैं टू इटरेट थ्रू द लूप. इंटीजर आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0
I will go till it is less than 6, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसेस के लिए वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। और फिर स्टेप है i प्लस प्लस। ये हुई फॉर लूप की बॉडी। अब ये क्या करेगा, डिस्टेंस ऑफ i इक्वल टू क्या इनिशियलाइज करना है हमें, इंट मैक्स, करेक्ट, इन्फिनिटी, उसका मतलब है इन्फिनिटी। हमने सारे डिस्टेंसेस पहली स्टेप में इन्फिनिटी दे दिए। अब शॉर्टेस्ट पाथ रिलैक्स्ड, इसे भी इनिशियलाइज करना है फॉल्स वैल्यू से, है ना। तो ये जो मैंने बोला था ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस फॉर लूप मुझे नेक्स्ट स्टेप लेनी है। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे अब एक एक वैल्यू यहाँ पे मतलब अलोंग द पाथ, अलोंग द ग्राफ मुझे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करना है। तो पहले बार मैं कहाँ पे जाऊंगी, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है मैं वहां पे जाऊंगी। तो इसका डिस्टेंस नेक्स्ट स्टेप में 0 होगा, बाकी सब इन्फिनिटी होगा, करेक्ट। तो मैं ये अपडेट कर देती हूँ इन माय प्रोग्राम। कैसे अपडेट करेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ 1 मतलब डिस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट हमें 0 करना है। ये हो गया नेक्स्ट स्टेप, करेक्ट। नेक्स्ट इटरेशन हो गया, नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू सेट हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो इसके नेक्स्ट की स्टेप क्या होती है, हमें डिस्टेंसेस अपडेट करने, लेकिन किसके, जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट से, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से जो एजेस डायरेक्टली जाती है सिर्फ उन्हीं को मुझे स्कैन करना है, करेक्ट। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कैसे पता चलेगा, तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, राइट, यहाँ पे मुझे अलोंग ये सर्च करना है। तो जहाँ पे ऐसी कॉस्ट दिखती है मतलब वहां डायरेक्ट एज है, तो मुझे ये तीनों को स्कैन करना है, करेक्ट। अब ये मैं कैसे करूंगी, तो मैं क्या करती हूँ, इन तीनों को स्कैन करने के लिए और उन्हें उसमें से सबसे छोटे डिस्टेंस को रिलैक्स करने के लिए, मतलब इस एज को हम रिलैक्स करेंगे, राइट, इन तीनों में से। तो उसे रिलैक्स करने के लिए मैं एक अलग फंक्शन लेती हूँ। तो अभी के लिए डायक्स्ट्रास को हम यही छोड़ देते हैं और एक काम करते हैं, डायक्स्ट्रास से पहले लेट्स टेक अनदर फंक्शन कॉल्ड एंड रिलैक्स्ड वर्टेक्स। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है क्योंकि ये रिटर्न करेगा जो सबसे पास वाली वर्टेक्स है फ्रॉम द ये स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हुआ मेरा रिलैक्स्ड वर्टेक्स का बॉडी। अब ये क्या करेगा, एक मिनिमम नाम का वेरिएबल लेगा, ठीक है। उसका वैल्यू पहले सेट करेंगे इन्फिनिटी, बिकॉज अभी तक हमें पता नहीं है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हम उसे एक जनरल वैल्यू देंगे विच इज इन्फिनिटी, ग्रेटर, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू देंगे। अब हम आगे जाएंगे और एक इंट वेरिएबल लेंगे, इंटीजर वेरिएबल, जो इंडेक्स हमें रिटर्न करनी है, इंडेक्स टू बी रिटर्न। ये इंडेक्स हमें पता चलेगी ये तीनों को स्कैन करके, ठीक है। यहाँ पे है हम अभी, इसका डिस्टेंस हमने 0 किया है, तो इससे आगे जाने वाली एजेस मतलब ये 3 एजेस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, तो ये 3 एजेस को स्कैन करके अब ये वाला फंक्शन सबसे छोटा जो है उसे रिटर्न करेगा। तो लेट्स डू दैट। उसके लिए मैं एक फॉर लूप लूंगी, फॉर लूप में एक इंट आई लूंगी which will start from 0th vertex, it will go till vertices, correct, and step will be I plus plus, अरे सॉरी,
So I will take a for loop. Let me just quickly write the for loop. अब इनसाइड द फॉर लूप मुझे क्या करना है, स्कैन करना है। कैसे स्कैन करना है, उसकी कंडीशन देखते हैं। तो मैं इफ कंडीशन लूंगी। इफ में मुझे क्या क्या चेक करना है। पहली तो चीज ये जो सारे डिस्टेंसेस हम चेक करेंगे वो शॉर्टेस्ट पाथ रिलैक्स्ड नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज अगर इसमें से कोई ऑलरेडी रिलैक्स्ड है तो उसे हम नहीं चेक करते, राइट। तो वो कंडीशन मैं पहले कंसिडर करूंगी। ये फर्स्ट स्टेप में इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन बाद में स्टेप्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ इट इज नॉट शॉर्टेस्ट पाथ रिलैक्स्ड, करेक्ट। एंड और एक कंडीशन मुझे देखनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि इसका डिस्टेंस, मतलब ith वर्टेक्स का डिस्टेंस स्मॉलर देन मिनिमम होना चाहिए, करेक्ट। मतलब अगर वो मिनिमम है, उससे कम है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। तो क्या करूंगी मैं, ये दोनों कंडीशंस चेक करके इफ की बॉडी में जाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी, मिनिमम वैल्यू को अपडेट करूंगी नए वाले डिस्टेंस के साथ। मतलब जो छोटा ये डिस्टेंस हमें मिला है उससे अपडेट करूंगी, और उसकी इंडेक्स को इंडेक्स टू बी रिटर्न में सेव कर लूंगी। ये स्टेप क्या करता है जरा ध्यान देना, आई विल एक्सप्लेन। सो मैंने क्या किया, ये पूरा रो स्कैन किया। मेरा पहले वाला डिस्टेंस क्या था, मिनिमम क्या था, इन्फिनिटी था मेरा मिनिमम, करेक्ट। अब मुझे जब 4 मिला तो 4 इज स्मॉलर देन इन्फिनिटी, तो मेरा ये डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ 0 अपडेट हो गया, किससे, 4 से। और रिटर्न क्या करूंगी मैं, इंडेक्स टू बी रिटर्न क्या होगा, 0, करेक्ट। ये मेरा सेव हो गया डिस्टेंस में और इंडेक्स टू बी रिटर्न में। ये था 4, बट इससे आगे तो 0 है, करेक्ट। तो ये रिटर्न होना चाहिए, सॉरी 0 हम नहीं कंसिडर कर रहे, सिर्फ ग्राफ वाली वैल्यू कंसिडर कर रहे। तो 1 है हमारे पास, 3 भी है, तो 4 से आगे निकल के ये 1 अपडेट होना चाहिए, बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन इट। सो मैंने मिनिमम को अपडेट किया था 4 की वैल्यू से। 4 से स्मॉलर है 1, तो नया मिनिमम क्या होगा, 1 होगा। और इंडेक्स टू बी रिटर्न क्या होगी, 2 होगी, बिकॉज इसका वैल्यू है 1। अब आगे जाएंगे, 3 1 से कम है क्या, नहीं है, तो मिनिमम विल नॉट अपडेट, बिकॉज अगर वो छोटा है, यहाँ पे देखिए, इफ डिस्टेंस ऑफ आई इज स्मॉलर देन मिनिमम तो ही वो अपडेट होता है। तो 3 इज नॉट स्मॉलर देन 1, तो वो 3 के लिए अपडेट नहीं होगा। और इन तीनों में से हमें करेक्ट इंडेक्स रिटर्न मिल जाएगी, ठीक है। अब सिर्फ इस फंक्शन में सिर्फ एक ही काम बचा है, वो है रिटर्न करना। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे इंडेक्स टू बी रिटर्न। ओके, ये फंक्शन पूरा हो गया। अब हम जाएंगे अपने डायक्स्ट्रास की तरफ। अब हमें रिलैक्सेशन फंक्शन पता चल गया है, कैसे हमें पूरे रो में से सिर्फ कम की वैल्यू को रिलैक्स करना है, वो हमने देख लिया। अब क्या करूंगी मैं, मुझे एक एक स्टेप में रिलैक्स करते जाना है हर एक वर्टेक्स को। और ये कब तक करना है, जब तक मुझे नंबर ऑफ एजेस जितने मुझे चाहिए नहीं मिल जाते। तो एक पूरे कंप्लीट हुए ग्राफ में जिसका हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिया है, उसमें कितने एजेस होते हैं, उसमें अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस n है, तो अगर शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ निकाला गया तो नंबर ऑफ एजेस होंगे n-1 मैक्स, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा n-1 एजेस होंगे। वो कैसे,
ये दिखाती हूँ मैं। तो हमारी स्टार्टिंग वर्टेक्स है 1, तो 1 से लेके हम लेट्स से हर एक रास्ते को जाएंगे। सपोज ये हमारा रास्ता है, अज्यूम दैट दिस इज आवर पाथ, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये सब इंक्लूड हो गया, एक पाथ मिल गया। नंबर ऑफ वर्टाइसेस के लिए 6 वर्टाइसेस के लिए 5 एजेस लगे हमें। तो अब डिस्टेंस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 0 कर लिया है हमने। अब मैं एक फॉर लूप लूंगी। फॉर लूप में आई विल टेक अ इंटीजर, आई विल कॉल इट एजेस, ठीक है। एजेस स्टार्टिंग में 0 होंगी। ये कब तक करना है? जब तक एजेस का नंबर वर्टाइसेस से एक स्मॉल नहीं हो जाता। सो वर्टाइसेस -1 एंड एजेस ++। ओके, अब इस फॉर लूप की बॉडी में जाऊंगी। हर बार मुझे क्या करना है, हर एक स्टेप में क्या करना है? अभी मुझे पहले तो हमें डू यू रिमेम्बर द रिलैक्सेशन फॉर्मूला? तो रिलैक्सेशन फॉर्मूला क्या है? आई विल जस्ट क्विकली राइट हियर, डी ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ uv should be smaller than d of v, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ही d of v becomes d of u plus cost of uv. Again, if you don't remember how to use this formula, यहाँ के मीनिंग क्या है, प्लीज रिफर टू माय प्रीवियस वीडियो। अब इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे लगाना है। पहले हमें u को डिफाइन करना है, तो आई विल टेक एन इंटीजर कॉल्ड इंट u। ओके, ये इंट u क्या होगा? जो प्रीवियस स्टेप में रिलैक्स्ड हुआ है वहां पे हम पहुंचते हैं हमेशा, ठीक है। एट द वेरी बिगिनिंग हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स को रिलैक्स किया, उसका डिस्टेंस 0 किया, तो हम वहां पहुंचे। नेक्स्ट स्टेप में किसी और को रिलैक्स करेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। उसका मतलब जो इंडेक्स रिटर्न आई है रिलैक्स होके वो यहाँ पे आएगी। तो मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ। हमारा फंक्शन का नाम क्या था? लेट मी जस्ट सी, रिलैक्स्ड वर्टेक्स। ओके, सो int u will be relaxed vertex, ठीक है। now I will add the brackets here। अब हमें क्या चाहिए? हमने एक वर्टेक्स को रिलैक्स कर दिया, राइट, जो हमारे पास आई है रिलैक्स्ड होके, तो मैं उसे शॉर्टेस्ट पाथ रिलैक्स्ड में ट्रू कर दूंगी, क्योंकि वो रिलैक्स होके आई है तो उसका हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया है, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप विल बी, what I will do now is I will take a for loop। why? हमें एक एक स्टेप आगे बढ़ानी है, क्योंकि हमें v देखना है, कौन से v तक हम जाते हैं वो देखना है। तो फर्स्ट I will take a integer v, then v will start with 0, v will go till vertices and step will be v++। अब इन सारे डेस्टिनेशन में से मतलब मुझे u क्या मिला है, लेट मी जस्ट शो यू। तो फर्स्ट स्टेप में मेरा ये है u, करेक्ट। तो अब मुझे क्या करना है, उससे आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पे, ये मेरा u है, अब मैं क्या करूंगी, ये मेरा इंडेक्स है जो रिटर्न आया है ना, ये था मिनिमम वैल्यू इस रो में से, और जो रिटर्न आया वर्टेक्स वो है ये, मतलब 2 की वैल्यू मुझे रिटर्न आई। तो अब मैं ये रो चेक करूंगी। ये रो में मुझे 4 कंडीशंस का ध्यान रखना है, 4 कंडीशंस। एक तो मुझे v ढूंढना है। v पहली तो चीज रिलैक्स नहीं होना चाहिए, नॉट रिलैक्स्ड, ठीक है। और एक चीज हमें कंसीडर करनी है, v का कॉस्ट जो है u टू v तक जाने का कॉस्ट, मतलब 2 से आगे बढ़ने का कॉस्ट 0 नहीं होना चाहिए।
वहां पे कुछ तो कॉस्ट होना चाहिए, मतलब ग्राफ ऑफ यूवी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में उसका कुछ तो वैल्यू होना चाहिए। थर्ड चीज हमें जो कंसीडर करनी है वो है उसका यू तक जो हम आए हैं, तो यू हमें रीचेबल होना चाहिए। यू तक का जो डिस्टेंस है डी ऑफ यू, दिस शुड नॉट बी इंफिनिटी, ये इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट चीज, डी ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी should be smaller than d of v। ओके, ये चीज हमें कंसिडर करनी है, चार चीजें। तो अब हम इफ कंडीशन लेते हैं और इन चार चीजों को कोड करते हैं। सो इफ, ये रहा मेरा इफ का बॉडी। फर्स्ट, वी शुड नॉट बी रिलैक्स्ड, सो नॉट शॉर्टेस्ट पाथ रिलैक्स्ड वी, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। इसका मतलब वो रिलैक्स नहीं है, जो रिलैक्स नहीं है वहां पे ही हमें आगे बढ़ना है। अब सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, ग्राफ ऑफ यूवी की वैल्यू कुछ तो होनी चाहिए, मतलब यू से लेके वी तक एक रास्ता होना चाहिए, राइट, उसकी कुछ कॉस्ट होनी चाहिए। तो वो कैसे चेक करेंगे, ग्राफ ऑफ यू एंड वी का कुछ वैल्यू होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। तो उसके लिए सिर्फ यही स्टेटमेंट काफी है। नाउ नेक्स्ट हमें कंसीडर करना है यू तक का डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, मतलब हम यू तक पहुंचे हुए होने चाहिए, करेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ यू शुड नॉट बी इंट मैक्स, ये रहा थर्ड वैल्यू। एंड सबसे लास्ट वाला हमें क्या चेक करना है इफ कंडीशन में, कि डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी, मतलब ग्राफ ऑफ यू वी should be less than distance of v। तो ये हो गए चार कंडीशंस चेक। अब जाऊंगी मैं इफ की बॉडी में। अब हमें क्या करना है, सिर्फ डिस्टेंस ऑफ v अपडेट करना है नए वैल्यू से। नए वैल्यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ u प्लस ग्राफ ऑफ uv, करेक्ट। Please see the previous video where I have explained how to use the relaxation formula। अगर आप वो एक बार देखोगे आपको ये बहुत इजी से और जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेप नहीं है, बस आपको बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट फॉर लूप, है ना। लेट मी जस्ट फॉर्मेट दिस अ लिटिल बिट। आई होप हमने कुछ सिंटैक्स का एरर नहीं किया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ प्रिंट करना है जो मेरा पूरा एल्गोरिदम हो गया है। मैंने हर एक वर्टेक्स को रिलैक्स किया है और हर एक वर्टेक्स को चेक किया है यू टू वी लेके, राइट। तो ये दो फंक्शंस मिला के मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, आई विल टेक अ फॉर लूप फॉर प्रिंटिंग द आंसर। उससे पहले मैं सी आउट स्टेटमेंट लेती हूँ, यहाँ पे सी आउट करती हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आर, और इसके आगे वो डिस्टेंसेस में लिख लूंगी, ठीक है। अब कैसे करना है, एंटर करती हूँ। सो सी आउट, एक टेबल जैसा बना लेती हूँ। तो फर्स्ट उसका नेम होगा, टेबल का टाइटल का लाइन होगा, तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे चार टैब्स भी दे देती हूँ। नाउ डेस्टिनेशन
अगेन 4 टैब्स, ताकि ये ठीक से दिखे हमें। और फिर उसका डिस्टेंस भी तो लिखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या मिला है उस डेस्टिनेशन का। तो डिस्टेंस ऑफ क्या करना होगा, आई लेना होगा। तो हमें इस स्टेटमेंट को फॉर लूप में लेना होगा, बिकॉज हमें हर एक का डिस्टेंस चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस लिखती हूँ मैं। हाँ, और अब मैं फॉर लूप लूंगी फॉर राइटिंग एवरीथिंग, मतलब 0 से लेके 5 तक के वर्टाइसेस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखने का काम अब करती हूँ। सो एक इंटीजर लेती हूँ आई, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 0, अगेन इट विल गो टिल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, स्टेप होगा आई प्लस प्लस, और ये क्या करेगा, सी आउट करेगा पहले स्टार्टिंग पॉइंट। चार टैब्स दे देती हूँ। नाउ अब आई प्रिंट करेगा, आई क्या है, हमारा डेस्टिनेशन है। अगेन 4 टैब्स एंड डिस्टेंस ऑफ आई में सेव है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, इसीलिए हमने वो 1D एरे लिया था। ये हो गया कंप्लीट। सो ये फॉर लूप क्या काम करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को प्रिंट करने का काम करेगा। अब ये मेरा क्लास का स्ट्रक्चर, ड्रैग स्टार्स के फंक्शन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं जाऊंगी ड्राइवर कोड में। ड्राइवर कोड मतलब जहां से मुझे प्रोग्राम रन करना है, करेक्ट। तो इंट मेन से मेरा प्रोग्राम रन होगा। यहाँ पे मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो डी ग्राफ नाम था हमारे क्लास का, डी ग्राफ लेट्स से D1, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, D1 से कॉल करना है डाइक्स्ट्रा, है ना। और इसमें पैरामीटर लिया था हमने स्टार्टिंग पॉइंट, जो मैं अभी दूंगी 1। तो ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करूंगी, रिटर्न 0। अब अच्छा, यहाँ पे नीचे मैंने इंट में लिख लिया था, तो उसे डिलीट कर देती हूँ। और क्लास खत्म होने के बाद, क्लास कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पे जब मैंने ग्राफ को इनपुट दिया था तब एक कॉमा रह गया था, दैट वाज वन एरर। इंट डिस्टेंस ऑफ वर्टाइसेस जहाँ पे लिया है लाइन नंबर 11, वहां पे डिस्टेंसेस हो गया था, तो वो एक एरर मैंने निकाला। और ये जो सी आउट का मेरा लूप है पूरा, ये फॉर लूप के आउटसाइड आना चाहिए। जो फॉर लूप हमने एजेस के लिए लिया उसके भी आउटसाइड आना चाहिए। तो ये 3 चेंजेस मैंने किए, और लेट्स रन द प्रोग्राम। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, डेस्टिनेशन एंड डिस्टेंस। सो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 1, डेस्टिनेशन है 0 1 2 3 4 5, और डिस्टेंसेस दिख रहे हैं हमें 3 0 1 3 6 और 7। और ये मैंने राइट साइड में देखिए आप, मैंने मैन्युअली निकाला था। तो ये सेम ही है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिले हैं मैन्युअली निकाल के, वही हमें एल्गोरिदम से मिले। सो दैट्स व्हाई वी हैव डन द एल्गोरिदम करेक्टली। थैंक यू।